Hello dear students, I hope you have seen my yesterday's videos. We have discussed the topic under the networking fundamental, many topics. Today we will discuss further the topics, rest topics that were under the networking fundamentals. These topics are network, accessing the internet and types of the network connection. Internet, what is the internet? We will discuss the definition of the internet and what components here, what are needed for accessing the internet, what components are needed for accessing the internet. Then after that we will discuss type of the network connection from starting to till now, what type of the network connections we are using these days. So today we will cover this topic. After that I will send you some pics of this syllabus from my book, then you can read out this topic from this, and at last I will give you some questions that you have to write down in your notebook. So let's come with me for discussing these topics. यस डियर स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट इज़ इंटरनेट. अभी तक हमने नेटवर्किंग के बारे में पढ़ा था. अब इंटरनेट किसे बोलते हैं? व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द इंटरनेट? दैट इज़ ग्लोबल इंटरकनेक्शन ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क्स अराउंड द वर्ल्ड इज कॉल्ड द इंटरनेट. Globally, all over the world, the computer are connected to each other and they are related to different networks. इंडिया में नेटवर्क्स अलग यूज़ हो रहा है, फॉरेन में अलग हो रहा है, किसी और कंट्री में अलग हो रहा है. सारे नेटवर्क आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट है. ऑल आर शेयरिंग द डेटा विथ ईच अदर. दैट इज नोन एज द इंटरनेट. नाउ व्हाट इज द इंटरनेट? इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क. दैट इज इंटरनेट इज कॉल्ड द नेटवर्क ऑफ network, and the communication over the network is done by the protocols, that is the set of rules. Whenever we are doing the communication over the network by using these, we are sending our data from here to there through the protocols. हम कुछ rules के through data को एक जगह से दूसरी जगह पर send कर रहे हैं, and that rules are known as the protocols. जब भी डेटा ट्रांसफ़र होता है तो दो प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं हर इंटरनेट के अंदर. जो भी आप में क्रोम सर्विसेज आप यूज़ करते हो, जो भी वेब ब्राउज़र्स यूज़ करते हो आपस में डेटा को शेयर करने के लिए, इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, तो दो प्रोटोकॉल्स हमेशा आपके पीसीज में, आपके मोबाइल्स में यूज़ होंगे डेटा शेयरिंग के लिए. फर्स्ट इज़ TCP/IP प्रोटोकॉल एंड सेकेंड इज़ फाइल FTP प्रोटोकॉल. FTP is file transfer protocol. Whenever you are transferring a file from one place to another place, then we are using the FTP protocol, file transfer protocol. And simply we are sharing our data, our messages we are doing. ईमेल के थ्रू हम मैसेजेस एक्सचेंज कर रहे हैं, तो हमारा कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है? TCP/IP प्रोटोकॉल. TCP मीन्स ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP मीन्स इंटरनेट प्रोटोकॉल. TCP/IP transmission control protocol/internet protocol, and file transfer protocol are used for doing the communication, for sending the data from one place to another place. This is the definition of the internet. Next is accessing the internet. When we are accessing the internet, then what are the needs of we are having a need of which components and which things? First is when we are accessing the internet, we need a computer, mobile phone, any gadget in which we can use the facility of the internet. Second is the modem. Modem is known as the modulator and the demodulator. And what is the purpose of the modem? First, to use modem that change the AC current into the DC current and DC into AC. When we are sending the signals that are in the form of the AC signals, analog signals बोलते हैं हम उसको, because डेटा टेलीफोन लाइंस के थ्रू मूव करता है और टेलीफोन लाइंस में हमारा AC करंट पास होता है. तो कंप्यूटर से जब भी डेटा बाहर जाएगा टेलीफोन लाइंस में, उससे पहले मॉडेम उसको क्या करेगा? DC करंट को AC करंट में चेंज कर देगा. और कंप्यूटर्स में जो हमारा डेटा होता है वो DC की फॉर्म में होता है. जब टेलीफोन लाइंस पर आता है तो वो AC की फॉर्म में आ जाता है. मॉडेम उसे DC से AC में चेंज करता है. जब एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जब वो डेटा पहुंचता है तो वो AC की फॉर्म में ही पहुंचेगा, बट कंप्यूटर उसको DC की फॉर्म में लेता है. तो अगेन रिसीविंग एंड पे मॉडेम दोबारा उसको क्या करता है? AC करंट को DC करंट में चेंज करता है. तो इस प्रोसेस को रिसीविंग पर DC से AC, सेंडिंग पर
डीसी से एसी में चेंज करना, और रिसीविंग पर एसी से डीसी में चेंज करने का काम कौन करता है? मॉडेम करता है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। तो इंटरनेट को जब भी हमें एक्सेस करना है तो डेटा को टेलीफोन लाइंस के थ्रू जब हम मूव कराएंगे तो उसके लिए हमें मॉडेम की ज़रूरत होती है। तो दैट इज़ मॉडेम। नेक्स्ट इज एन अकाउंट विद आईएसपी। इंटरनेट चलाने के लिए हमें हमेशा कुछ ना कुछ अकाउंट बोरो करना पड़ता है जिस पे हम इंटरनेट लेते हैं, जैसे कि जियो अकाउंट है, किसी के पास आइडिया है, एयरटेल है, तो वो किससे मिलता है हमें? सर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से। दैट इज नोन एज द ISP, Internet Service Provider. Then we should have an account with the ISP. Fourth is the browser. Without browser you cannot access the internet. हमें इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए, वेबसाइट्स चलाने के लिए क्या चाहिए? कोई ना कोई ब्राउज़र चाहिए। वो ब्राउज़र हमारे पीसी में या हमारे मोबाइल फ़ोन्स में डाउनलोड होना चाहिए। दैट ब्राउज़र इज़ कॉल्ड द लाइक इंटरनेट एक्सप्लोरर। पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर था एंड लेटेस्ट हम गूगल क्रोम यूज़ करते हैं, मोजिला, फायरफॉक्स, गूगल क्रोम्स, दीज आर द ब्राउज़र्स. So for accessing the internet, we need these four things: computer, modem, account with ISP, and the browser. Now, our next and last topic of this internet fundamentals is next is the types of internet connection. Internet connection कितनी तरह का होता है? First is dial-up connection. Second is digital subscriber line. Next is the cable internet. Next is the satellite connection. Next is 3G and 4G system. Next came Wi-Fi. Next came WiMAX, and the next came Wi-Fi Hotspot. Out of these, some terms are familiar to you and some are not. First is dial-up connection. What is the dial-up connection? This is the dial-up connection. In this, a telephone is connected to the computer. Whenever we have to connect the internet to our computer, then some number was given to us, then we have to dial up that number, and then our PC will be connected to the internet. It was very slow, and nowadays we are not using this type of connection. It was used in the earlier time. Now, because it was really very slow, and the main drawback of this connection was whenever one are using the telephone is stuck to only for internet. We cannot use the telephone for dialing any other number. You're talking to another one. That telephone was connected to only computers, and it was only used for the internet. तो वो टेलीफोन सिर्फ इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए, उस वक्त जब तक इंटरनेट कनेक्ट रहता था, बुक रहता था, नो वन कैन यूज़ दिस टेलीफोन फॉर कॉलिंग टू एनी वन. दिस एंड इट वॉज रियली अ वेरी स्लो कनेक्शन, and it was the starting age when we started to use the internet. We were using this type of connection, dial-up connection. You have heard about the BSNL connection. जब मिलते थे तो ऐसा टेलीफोन के थ्रू ही इंटरनेट कनेक्ट होता था और उसे हम BSNL कनेक्शंस बोलते थे. That was the dial-up connection. Now our next connection is DSL, and next was the digital subscriber line, that was also known as the DSL. DSL means D means digital, S means subscriber, L means line, digital subscriber line. What was the features of this? Firstly, the telephone dial-up connection came after that digital subscriber line came. It also used the telephone lines. सेम एज द डायल अप कनेक्शन की तरह इसमें भी टेलीफोन लाइंस का ही यूज़ होता था, बट इसकी मेन एडवांटेजेस क्या थी? स्पीड वाज हायर देन द डायल अप कनेक्शन, एंड थर्ड फीचर ऑफ दिस वाज दैट इट फिल्टर्स द डेटा. ये डेटा को फिल्टर्स करता था एंड रिमूव्स द हाई फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस. अगर उस डेटा के अंदर कुछ नॉइजेस या एक्स्ट्रा थिंग्स इंक्लूडेड होती थी, उसको रिमूव करके डेटा को फिल्टर करके ये सेंड करता था. दैट वाज द डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन. इसमें हम लाइंस को सब्सक्राइब करते थे, टेलीफोन लाइंस की हम सब्सक्रिप्शन लेते थे, उसके लिए हम पे करते थे, देन वी कनेक्ट टू द इंटरनेट. दिस वाज द डिजिटल सब्सक्राइबर line. Next is the cable internet. In this you will use the cable TV lines for connecting to the internet. Its other feature is its speed was higher than the DSL. इसकी speed DSL से भी ज़्यादा थी
और इस तरह के कनेक्शंस को जनरली DSL कनेक्शंस और द केबल नेटवर्क कनेक्शंस आर जनरली नोन एज द ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन. इन्हें हम ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शंस बोलते हैं. In this, you can use the phone to call and for connecting to internet simultaneously. Now your phone is not stuck to internet. You're not only used for calling. Simultaneously, you can use your phone to call and for connecting to the internet simultaneously. जैसे कि हम अब आजकल यूज़ कर रहे हैं तो फ़ोन पे हम बात भी कर रहे हैं and simultaneously we are connected to internet also whenever data network is on in your phones. So this is the cable network. Now I think dial-up connection is clear, DSL is clear, cable network is clear. Now move to the next, that is the satellite connection. Next is the satellite connection. In the satellite connection, speed and clarity of the signal was high. मतलब इसकी जो स्पीड थी सिग्नल्स की वो बाकी तीनों जो हमने कनेक्शंस पढ़े हैं उससे ज़्यादा थी. और जैसे सैटेलाइट से इसमें सिग्नल्स लिए जाते थे फॉर कनेक्टिंग टू द इंटरनेट. फॉर एग्जाम्पल आप डिश टीवी एंटीना जो यूज़ करते हो डैट इज़ कनेक्टेड टू सैटेलाइट, तो डैट अलाउज द यूजर्स टू हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन. इसके थ्रू हमें यूजर्स को हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड होता था. these were the features of the satellite connection. Now next is the 3G and the 4G connection. I need not to tell you what is the 3G connection, and now for the higher speed we're using the 4G, and now 5G is just ready to come. That is the 5G. What is the difference between 3G, 4G and 5G? That is the rate of the signals clarity plus the differences of the signal clarity and differences of the speed. 3G की स्पीड कम थी, 4G की उससे ज़्यादा है. जो 5G है उसकी सिग्नल जो आपकी स्पीड है that will be much higher than the 3G and the 4G. नेक्स्ट वी कम्स द इंटरनेट कनेक्शन, डैट इज़ द वाईफाई. अभी हम सबके घर में है वाईफाई, डैट इज़ द वायरलेस फिडिलिटी. ये वायरलेसली सारे कनेक्शन जितने भी गैजेट्स हैं उनको आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देता है. एंड वी कैन शेयर आवर डेटा ऑल्सो विद ईच अदर, एंड वी ऑल द कनेक्शंस आर all the gadgets can be connected to the internet at any time when you are switching on the Wi-Fi. तो वाईफाई में आपको क्या होता है, एक पासवर्ड मिलता है. जैसे ही वो पासवर्ड ऑन होता है उसके आसपास के जितने भी गैजेट हैं आपके पास, मोबाइल फ़ोन्स या जो भी लैपटॉप्स, आप सभी को एक इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हो. इसकी स्पीड बहुत अच्छी होती है, क्लैरिटी बहुत अच्छी होती है, प्रोसेसिंग बहुत फास्ट करता है. कुछ भी डाउनलोडिंग करनी होती है दैट स्पीड इज़ रियली वेरी फास्ट. और इसका फ़ायदा क्या है कि हम एक स्मॉल एरिया में बहुत से पीसेज ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे के साथ वाईफाई के एक कनेक्शन के थ्रू सारे ही आपस में इंटरनेट से कनेक्ट हो जाते हैं. दिस इज़ द वाईफाई. नेक्स्ट कनेक्शन इज़ WiMAX. वाईफाई से और भी एडवांस वर्जन है, दैट इज़ द WiMAX. WiMAX हम कहाँ यूज़ करते हैं? वाईफाई तो यूज़ होता है 10 फीट के डिस्टेंस तक इसकी रेंज होती है. 10 फीट में WiMAX के थ्रू 10 फीट तक जितने भी पीसेज या आपके मोबाइल फ़ोन्स हैं आप उसको इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं सिर्फ इसी कनेक्शन के थ्रू. लेकिन WiMAX काम करता है अप टू द 50 किलोमीटर्स. अगर आपने WiMAX ऑन कर दिया, वो कनेक्शन आपने इंटरनेट का ले रखा है, तो 50 किलोमीटर्स तक जितने भी गैजेट्स हैं, जितने भी मोबाइल फ़ोन्स और लैपटॉप्स हैं, आप इसी कनेक्शन के थ्रू सभी को आपस में कनेक्ट कर सकते हो एंड सभी इंटरनेट के साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं. एंड द सेकेंड मेन फीचर ऑफ WiMAX इट्स स्पीड इज़ 75 मेगाबिट्स पर सेकेंड. मतलब एक सेकेंड में ये 75 मेगाबिट्स डाटा क्या करता है, ट्रांसफ़र कर सकता है. और इसके अगेंस्ट वाईफाई की स्पीड क्या है, डैट इज़ 54 मेगाबिट्स पर सेकेंड. वाईफाई की स्पीड 54 मेगाबिट सेकेंड है और WiMAX की स्पीड 75 मेगाबिट्स पर सेकेंड है. और मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है, अकॉर्डिंग टू द फीचर्स ऑफ द WiMAX इट विल बी अ कॉस्टलियर देन द वाईफाई, क्योंकि वाईफाई का डिस्टेंस लेवल सिर्फ 100 फीट है और WiMAX का डिस्टेंस लेवल 15 किलोमीटर्स है. तो डैट इज़ कॉस्टलियर देन द वाईफाई. एंड नाउ वी विल कम टू द लास्ट इंटरनेट कनेक्शन, that is the Wi-Fi hotspot. Next is the Wi-Fi hotspot. Wi-Fi hotspot क्या होता है, what is, आप अपने मोबाइल में हॉटस्पॉट ऑन करके कनेक्शन आपने एक ही ले रखा है अपने पीसेज में, अपने मोबाइल में उस कनेक्शन का हॉटस्पॉट जब आप ऑन करते हो तो आपके आसपास में और भी गैजेट्स को आप अपने मोबाइल फ़ोन
कि इंटरनेट कनेक्टिविटी के थ्रू उन पे भी इंटरनेट यूज़ कर सकते हो। तो हॉटस्पॉट जिसके थ्रू बाकी पीसेस और बाकी मोबाइल फ़ोन्स को अपने एक ही कनेक्शन के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और डाटा को शेयर कर सकते हैं और इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं। ये हॉटस्पॉट जब हम रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते हैं तो हॉटस्पॉट ऑन करते हैं, रेस्टोरेंट का इंटरनेट कनेक्शन यूज़ कर सकते हैं। दीज आर, यू कैन सी दिस फैसिलिटी इन द रेस्टोरेंट्स, cinema halls, railway stations, all these places you can see we can use the hotspots of the data connections. So these were the internet connections of these. We have read about the 8 internet connection: dial-up connection, DSL, cable network, satellite, 4G, 3G, Wi-Fi, WiMAX and Wi-Fi hotspot. Now I am writing some questions and you have to write down the answer of these questions in your notebook. I am sending you the click of the pages from my book. By reading these pages you will read out the topics, then you can write down the question answers of this on your notebook. So just see the question answer and write down these in your notebook. Now the unit name is web application, और यूनिट नेम में से आपका इस सब टॉपिक का नेम है नेटवर्क टर्मिनोलॉजी। इसके अंदर मैं आपको 3 क्वेश्चंस दे रही हूँ जो अभी आपने इन लास्ट 2 वीडियोस में देखा है। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क, क्या है, आपको यहाँ डेफिनेशन लिखनी है। एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क, इनकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताओ और सबके अपने 4 पॉइंट्स मेंशन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पीयर टू पीयर नेटवर्क एंड द क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क और पीयर टू पीयर नेटवर्क में जो मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कोई भी 4 पॉइंट्स राइट डाउन करने हैं अपने नोटबुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शंस आर देयर। ये इंटरनेट कनेक्शंस कितने तरह का होता है, ये हमने आज ही वाली वीडियोस में डिस्कस किया है। यही डायल-अप कनेक्शन, DSL कनेक्शंस, एक्सप्लेन ईच, हर किसी को आपने 2-2, 3-3 लाइन में एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चंस मैं आपको इनकी क्लिक भेज रही हूँ। मेरे पास बुक है IT 402 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वोकेशनल 402 कोड है आपकी बुक का, और किप्स पब्लिकेशन की बुक्स है। कुछ बच्चों के पास होगी जिन्होंने हमारे अपने सीनियर से अरेंज की होगी कंप्यूटर की बुक। उसमें अब आपका न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंगली तो ये यूनिट 4 है, लेकिन पुराने सिलेबस में ये यूनिट 2 था, वेब एप्लीकेशन। उसमें पेज किप्स की बुक में ये पेज नंबर 80 to 88 पेज नंबर है जिस पे ये टॉपिक क्लियर किया गया है, और उसमें से देखकर आप ये क्वेश्चंस लिख सकते हो और मुझे व्हाट्सएप पर आपने सेंड करने हैं दैट you already have written these questions in your note, you all have written these questions in your notebook। और जो भी 9th के बच्चे हैं उन्होंने भी यही क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि ये टॉपिक जो है रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंगली 9th और 10th दोनों में ही है। मैं क्लिक्स भेज रही हूँ, 9th और 10th दोनों के बच्चे ही ये टॉपिक लिखेंगे अपनी नोटबुक्स के अंदर। तो आई थिंक दीज 3 क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू। एंड इन माई लास्ट week's video we have discussed about e-commerce, what is e-commerce and what are the advantages and disadvantages of the e-commerce। that is your 4th question। वो भी आपने लिखना है अपनी नोटबुक के अंदर, उसकी भी मैं क्लिक सेंड करूँगी। that is the question number 4 I am writing here। 4th question is what is e-commerce या e-shopping, what are the advantages and disadvantages of these। You have to write down these 4 questions in your notebook, and the 4th question is on this page, Kips book page, that is on the page number 126, and the upper 3 questions are from the page number 80 to 88. I am sending the clicks, you can read out from there, and after that you can attempt these questions in your notebook. You have to send the you have to send your work done to me through a WhatsApp। I will check from here that you have done this work or not, and I am sending the revised syllabus of your this new class 10th also and class 9th student। please don't be confused कि हमें करना है या नहीं, ये 10th के लिए। नो, 9th और 10th दोनों को ये वाला चैप्टर करना है,
और ये मैं दोनों को ही करा रही हूँ। ये वाले क्वेश्चंस 9th के बच्चे भी लिखेंगे और 10th के बच्चे भी अपनी बुक के अंदर, अपनी नोटबुक्स के अंदर ये वाले क्वेश्चंस राइट डाउन करेंगे। सो तब तक के लिए बी सेफ एट होम एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।